Morning, everyone. We are there with the chapter number 6, Dissolution of Partnership. In the last lecture, we have saw the meaning of dissolution of partnership. We have saw the reasons for dissolution of partnership, and even we have saw the journal entries which are there, which are very important of dissolution of partnership. In this lecture, we will going to start with the practical problems. Okay. So as I said, in the exam, they might ask you the journal entry. They might ask you to prepare the ledger. Okay. So today we are going to start with the journal entries. How to record the journal entries if the information is given. So the problem that we're going to see is problem number second, which is there in your on your page number 244 of test book. So page number 244 of your test book. This question is there. So three partners are there, Leela, Manda, and Kunda. They are the partners, okay, in the firm Janki Stores, and they are sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Okay, three partners and their three ratio is given. On 31st March 2018, they decided to dissolve the firm when their balance sheet was as under. ठीक है, तो 31st March 2018 को उन्होंने डिसाइड किया that they will be to dissolve the firm. और उसके as per that dissolution, this balance sheet is there. Okay. Now, very first thing you have to see is you have to see at the end of your question. Okay, if you will see, आपको पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछा है या आपको लेजर बनाने बोला है. ठीक है. Now in this, if you will see, they are clearly mentioned that past necessary entries in the books of Janki Traders, which means they have asked you to prepare the journal entries. ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे ये प्रॉब्लम. ठीक है, कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. इज इट क्लियर? Now it is said we have to prepare the journal entries. तो जब भी आप journal entry start करोगे, ठीक है, you're always going to start with the balance sheet. ठीक है. So the very first entry which you always going to record in case of dissolution of partnership firm is that will be of transfer of asset. तो जो पहली entry आप पास करोगे dissolution के केस में, अगर journal entries पूछा है तो वो कौन सी होगी? It will be transfer of asset. Okay. Now यहाँ पे आपको assets दिए गए हैं. ठीक है, तो सिर्फ बैंक को छोड़ के, ठीक है, बैंक को छोड़ के जितने भी एसेट्स होंगे वो एसेट्स आप क्या करोगे? यू विल गोइंग टू ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, कौन सा एसेट छोड़ के? कैश या बैंक अगर ये दिया है तो इसको छोड़ के जो भी एसेट्स हैं वो सब के सब आप ट्रांसफर करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? Okay, so entry is there in front of you. So जो पहली entry है, I hope everyone knows how to prepare the journal entry. Format, date, particular, LF, debit amount, credit amount. I hope so सबको पता है. ठीक है. Now the very first entry will be transfer of assets. ठीक है, तो entry क्या है transfer of assets की? It is realization account debit टू. तो यहाँ पे आप टू एसेट्स नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, कैश और बैंक को छोड़ के जितने भी एसेट्स हैं उन सबका नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे. ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग था, मशीनरी था, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, तो आप सभी का नाम यहाँ पे मेंशन करोगे व्हेन यू विल गोइंग टू ट्रांसफर द एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इज इट क्लियर? ऑल्सो यू विल गोइंग टू मेंशन ऑल द अमाउंट. ठीक है, जितने भी अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दिए हैं, जितने भी अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दिए हैं, ठीक है, आई एम क्लियरली मेंशनिंग बैलेंस शीट में जो दिए हैं बुक वैल्यू वही आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, तो जैसे आप ये रिकॉर्ड करोगे फिर आप एक टोटल फाइंड आउट करोगे इनको प्लस करने के बाद, और वो टोटल आप डालोगे रियलाइजेशन अकाउंट के सामने. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री दैट यू विल गोइंग टू पास. ठीक है, in case of dissolution of partnership, and it will always going to be of transfer of asset to realization account. और entry क्या होगी? realization account debit
टू दी सैलरी एसेट, जो भी एसेट दिए हैं इन बैलेंस शीट. इज इट क्लियर? नाउ तो एसेट साइड इज डन. ठीक है, अब आते हैं लायबिलिटी साइड में. अब लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, जितनी भी लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर है और बिल पेबल है, तो यहाँ पे दो ही लायबिलिटी दी है. ठीक है, क्रेडिटर एंड बिल पेबल. तो ये दोनों लायबिलिटी आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में. किसमें ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में. तो व्हाट विल बी योर एंट्री देन? सो इट विल बी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो जितनी भी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों लायबिलिटीज को आप डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो दो एंट्रीज हमने की. पहली एंट्री ट्रांसफर ऑफ एसेट, दूसरी एंट्री ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज. ट्रांसफर ऑफ एसेट रियलाइजेशन टू एसेट्स, तो जितने भी एसेट्स है उसका नाम आएगा. और ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज में जितनी भी लायबिलिटीज है उसको आप डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टोटल करने के बाद जितने भी लायबिलिटीज है उनको प्लस करके जो टोटल है वो रियलाइजेशन के सामने आना चाहिए. Is it clear? Transfer of asset and transfer of liability. Now बैलेंस शीट में आप क्या बचा है? लायबिलिटीज में कैपिटल बचा है. ठीक है, अब ये कैपिटल किस एंट्री नहीं होती है. ठीक है, ये जो कैपिटल है इसका एंट्री नहीं होता है बिकॉज दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, तो इसका एंट्री आप जनरल एंट्री आप पास नहीं करोगे, बट इट विल बी यूजफुल व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जब हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब ये अमाउंट काम में आएंगे. ठीक है, लेकिन कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होती है क्योंकि दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. इज इट क्लियर? तो बैलेंस शीट से आपको क्या लेना है? दो ही चीजें लेनी है. ठीक है, एसेट साइड जितने भी एसेट्स हैं कैश और बैंक को छोड़ के, लायबिलिटी साइड जितनी भी लायबिलिटीज हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया होता या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस दिया होता तो उसकी एंट्री भी आती है. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो हम नहीं डालेंगे. ठीक है, सो दिस इज द वे यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज फ्रॉम दी बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द एडजस्टमेंट्स. ना पहला जो है पॉइंट है वो क्या कहा गया है? लीला agreed to take over the building at rupees 1,23,600. क्या बोला है? लीला क्या लेके जा रही है? बिल्डिंग लेके, यानी एसेट लेके जा रही है. ठीक है, और कितना लेके जा रही है? कितने का लेके जा रही है? 1,23,600. ठीक है, अकाउंट एंट्री क्या होगी? लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि लीला कौन है? पार्टनर है, और अगर पार्टनर कोई एसेट लेके जा रहा है तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. क्योंकि एसेट के लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रियलाइजेशन, राइट? इट विल बी लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला. बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला. कितने का? 1,23,600. ठीक है, so if you will say over here, it's the entry is over here. ठीक है, जहाँ पे लीला क्या कर रही है? बिल्डिंग लेके जा रही है, तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला. अमाउंट के कॉलम में डेबिट में और क्रेडिट में दोनों भी सेम अमाउंट आएंगे. इट विल बी 1,23,600. इज इट क्लियर? अगर कोई एंट्रीज ऊपर नीचे हो रही है तो नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Still it's okay. Now the next is the second adjustment is Manda took over goodwill, stock and debtor. ठीक है, तो मंदा क्या कर रही है? 3 एसेट लेके जा रही है और एट बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू पे ही लेके जा रही है. तो बुक वैल्यू पे लेके जा रही है मतलब जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में दिया है. ठीक है, जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में दिया है वही अमाउंट पे वो ये एसेट लेकर जा रही है. ठीक है, एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. इसके अलावा वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल ये दोनों भी
पे कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी क्या लाइबिलिटीज है, तो ये दोनों लाइबिलिटीज भी पे कर रही है, तो मंदा एसेट भी लेके जा रही है और लाइबिलिटीज भी पे कर रही है, ठीक है। तो दो सेपरेट एंट्री पास होगी, पहले एसेट लेके जा रही है उसकी एंट्री पास करेंगे हम, तो इट विल बी मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? इट विल बी मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन में आप दिखाओगे कि कौन से एसेट्स लेके जा रही है वो, ठीक है। बीइंग गुडविल, स्टॉक, डेटर्स टेकन ओवर बाय मंदा। क्या क्या लेके जा रही है? गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है। अब तीनों का जो बुक वैल्यू है वो आपको बैलेंस शीट में देखना है, तो बैलेंस शीट में उनका जो बुक वैल्यू है वो कितना दिया है? गुडविल का इट इज 45,600, राइट। नेक्स्ट, और क्या लेके जा रही है? डेटर्स, ठीक है, तो डेटर्स इज 30,600, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टॉक, ओके, तो स्टॉक इज 45,000। तो तीनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है? 1,21,200, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बंदा लेके जा रही है और पार्टनर टेकिंग ओवर एन एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल नॉट गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द एसेट्स व्हिच इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। यहाँ पे यू विल गोइंग टू मेंशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। In narration, you will going to show what are the assets are taken over by the partner, and the total you will going to put in the debit and credit amount column. Is it clear? Okay. Next thing, what it is said, Manda is agreed to pay creditors and bill payable, which means Manda is paying the liability. Okay. और जब liability पे करता है पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। अब यहाँ पे पार्टनर कौन है? मंदा। कौन लेके जा रहा है? लाइबिलिटी कौन पे कर रहा है? मंदा। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदाज अकाउंट। realization account debit to Manda's capital account. Again, two liabilities are there. So creditors कितना बोला है? How much it is given? Creditors in the book, it's 28,800, and bills payable it is given 21,600. तो दोनों को जब प्लस किया तो जो आंसर आया it is 50,400. Okay, so is it clear? So two things taken over by, two liabilities are paid over by Manda. ठीक है। Now the next point is motor car and machinery realized 1,51,080 and 31,680 respectively. ठीक है। अब यहाँ पे दो एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं। रियलाइज्ड हुए हैं मतलब सोल्ड आउट हुए हैं, और अगर सोल्ड आउट होते हैं तो क्या आता है बिजनेस में? पैसे आते हैं, और क्या जाता है? एसेट, ठीक है। तो एसेट के प्लेस पे रियलाइजेशन अकाउंट यूज करते हैं हम लोग, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। So these are the two assets that are realized. Okay, तो asset कोई भी realized होता है तो entry क्या होती है? Asset, sorry, cash और bank account debit to realization account. Now we will going to see the entry then. Okay, so entry क्या होगी इसकी? It will be, if you will see over here, sorry, third entry अगर आप देखोगे तो इट्स कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अभी यहाँ पे इन्होंने बैंक ही मेंशन किया है, बट व्हेनेवर यू विल गोइंग टू मेंशन, वी विल ऑलवेज गोइंग टू राइट कैश और बैंक का। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर एसेट, ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर एसेट सोल्ड। अगेन यू विल गोइंग टू डू द टोटल ऑफ बोथ द एसेट्स, ठीक है, दोनों एसेट्स का टोटल जो है वो आप लिख करोगे। तो यहाँ पे कितना दिया है? इट्स मोटर कार का 1,51,80. Okay, and what is the amount given of machinery? It's 31,680. Okay, तो इनका जो टोटल है वो कितना आया है? इतना आया है, that is 1,82,760. Okay, so this is the total of two assets which are sold out, which are realized.
Is it clear everyone this much? Now the next is investments were taken over by Kunda at an agreed value of 55,440. अब कुंदा क्या लेके जा रही है? वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है और कितने का लेके जा रही है? 55,440 में, ठीक है? So again the partner is taking over the assets. तो एंट्री क्या होगी? It will be Kunda's capital account debit to realization account being investment taken over by Kunda. ठीक है? So if we will see over here, it's here. Kunda's capital account debit to realization account being investment taken over by Kunda. ठीक है? So it's 55,440 and 55,440. ठीक है? Now the last is realization expenses amounted to rupees 6,800. What is the information given? Realization expense बोला है, ठीक है? तो expense है, which means obvious है, you have to pay this expense. तो अगर ये expense दिया है तो आपको pay करना है उसे, ठीक है? So what will be your entry? It will be realization expense. Sorry, it will be realization account debit to cash or bank account. क्या entry होगी? Realization account debit to cash or bank accounts. If you will see over here, realization account debit to cash or bank account being amount paid for realization expense. Being amount paid for realization expense. So कितना expense है? It is how much? 6,800. Okay. So this is the way you will going to pass the journal entry. So here we have done with all the entries. Any doubt is there till now? So here we have done with the all the entries, necessary entries. ठीक है? अब हम close करेंगे एक एक करके account. ठीक है? तो सबसे पहला account जो हम close करेंगे, it will be your realization account. कौन सा account close करेंगे हम? Realization account. ठीक है? अब realization account जब हम close करेंगे, तो सबसे पहले what you will going to do? You will going to do the total of credit. So वह आप अपना क्रेडिट का टोटल करोगे, ठीक है? एंड आप अपने डेबिट का टोटल करोगे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कहाँ-कहाँ आपका रियलाइज़ेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कौन-सा अकाउंट? रियलाइज़ेशन अकाउंट। अब फर्स्ट इसमें क्रेडिट है क्या? नहीं। सेकंड इसमें क्रेडिट है? येस, इट इज़ देयर, ठीक है? और कितना क्रेडिट है? द अमाउंट इज़ हाउ मच? इट इज़ 50,400। कितना अमाउंट है? 50,400, ठीक है? नाउ नेक्स्ट अगेन थर्ड में क्रेडिट हुआ है रियलाइजेशन कितना क्रेडिट हुआ है 1,82,760 तो 1,82,760 ठीक है थर्ड में हमारा रियलाइजेशन क्रेडिट नहीं हुआ है फोर्थ में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है इट विल बी 1,23,600 कितना है 1,23,600 ओके तो यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है नेक्स्ट इफ यू विल सी ओवर हियर यहाँ पर अगेन हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है ठीक है इफ यू विल सी ओवर हियर कितना क्रेडिट हुआ है 1,21,200 ठीक है
अगेन इन द नेक्स्ट 7th our account is credited, ठीक है, realization account क्रेडिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है? It's 55,440. नेक्स्ट देयर इज नो क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है। अब ये एंट्रीज तो हम अभी पास करेंगे, तो ये आपको नहीं देखनी है। फिलहाल आपको यहाँ तक ही एंट्री देखनी है जो हमने की है, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था, वो सब हमने क्या कर दिया है, वी हैव एडेड, वी हैव टेकन। अब आप उसको ऐड करोगे, तो ये सारे ऐड करने के बाद आई वांट टू नो द टोटल फ्रॉम योर साइड। Okay, correct, correct, Aniket, correct, Aditya, correct, Darshana. The total is 5,33,400. Okay. Now, once you have, you will going to get your credit का total. Now, you will going to find out your debit का total. आपका जो डेबिट का टोटल है वो कितना है वो आप फाइंड आउट करोगे। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी वेयर योर रियलाइजेशन अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, तो डेबिट करो, फाइंड आउट करोगे आप, तो कहाँ-कहाँ आपका डेबिट है रियलाइजेशन, फर्स्ट इसमें ही डेबिट है, तो इट इज़ हाउ मच 5,26,200, 5,26,200, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एंट्री में नहीं है, थर्ड में डेबिट नहीं है, फोर्थ में इट इज़ डेबिटेड, हाउ मच 6,800, कितना डेबिट है 6,800, ओके। देन यू विल गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है। अगर यहाँ अब यहाँ पे इफ यू विल सी डायरेक्टली इन द 8th एंट्री इट इज डेबिटेड, कितना इट इज डेबिटेड 50,400, कितना डेबिट है 50,400, ठीक है। यानी तीन ही जगह पे डेबिट हुआ है। व्हाट विल बी द टोटल देन? करेक्ट, द टोटल इज 5 lakh, okay, the total of debit is 5,83,400। क्या टोटल है डेबिट का 5,83,400, राइट। अब यहाँ पे दिस इज टोटल, सो वी हैव गॉट बोथ द टोटल्स, डेबिट का टोटल भी और क्रेडिट का टोटल भी। तो इफ द एज द फॉर्मूला इज क्रेडिट माइनस डेबिट, क्या करते हो आप, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। सो वी हैव फाउंड द क्रेडिट का बैलेंस, ठीक है। तो क्रेडिट कितना मिला है हमें, वी हैव गॉट क्रेडिट 5,33,400 एंड वी हैव गॉट डेबिट 5,83,400। तो अगर मैं माइनस करूंगी इनको, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी नेगेटिव ही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो अगर आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है, अगर आपको माइनस में आंसर मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है, विच मीन्स इट इज अ लॉस। ये क्या है, लॉस। सो दिस इज द लॉस, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ है फर्म को, 50,000 का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, इट्स 50,000। तो कितने का लॉस हुआ फर्म को, 50,000, ओके। So this is the way you will going to calculate whether there is a profit or whether there is a loss in on realization account। अब जब हम लेजर करते हैं तो ये इजी हो जाता है, क्योंकि हमें दो साइड पता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है और आपको ये कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? Now, whatever loss is we got, you will going to transfer it to the partners capital account, ठीक है। और अब पार्टनर्स कैपिटल में जब हम लॉस ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री क्या है, इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स में आप डिवाइड करोगे एज पर दी रेशियो,
ठीक है, तो ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है एज पर द रेशियो। इफ यू विल सी कितना मिला लीला को 25,000, मंदा के अकाउंट में कितना गया 16,667 और कुंदास के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ 8,333। ठीक है, तो दिस इज एज पर द रेशियो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? Now, once you will going to transfer the profit or loss on realization to partner's capital account, then you will going to close your partner's capital account. ठीक है, आप क्या करोगे, आपका partner's capital account close करोगे। ठीक है, अब उसके लिए आपको एक एक करके तीनों partners का close करना है। सबसे पहला partner कौन है, लीला, तो आप सबसे पहले लीला का account close करोगे और आप find out करोगे whether the firm has to pay to the लीला or the लीला has to pay to the firm। ठीक है, तो you have to find out this कि पैसा लीला को पे करना है या कंपनी फर्म लीला को पे करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लीला सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है क्रेडिट माइनस डेबिट करके। ठीक है, तो लीला कहाँ कहाँ क्रेडिट हुई है फर्स्ट यू विल गोइंग टू सी दैट, और कहाँ कहाँ डेबिट हुई है वो आप देखोगे। ठीक है, तो क्रेडिट में तो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करेंगे। सो इन द फर्स्ट एंट्री वेदर लीला इज देयर, इट्स नॉट देयर। सेकंड में भी लीला का नाम नहीं है, थर्ड में भी लीला का नाम नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। ठीक है, फिफ्थ में है। ठीक है, लेकिन वहां पे वो डेबिट हुई है और हम क्या ढूंढ रहे हैं, फिलहाल हम लीला का क्रेडिट वाला टोटल कर रहे हैं। ठीक है, तो लीला क्रेडिट टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे तो नहीं है लीला। ठीक है, अब जाते हैं बाकी एंट्रीज की तरफ। तो इफ यू विल सी ओवर हियर तो यहाँ पर भी लीला नहीं है, यहाँ पे भी लीला नहीं है। ठीक है, हियर इट इज नॉट दे, यहाँ पे भी लीला नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी है पर वो डेबिट में है। ठीक है, विच मीन्स देर इज नो क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट है ही नहीं लीला का। ठीक है, अब हम करेंगे फिर क्रेडिट के टोटल। ठीक है, लेकिन अब क्रेडिट में व्हाट विल बी देयर, इट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। मैंने कहा था ना बैलेंस शीट में जो आपको कैपिटल अकाउंट दिया है, जो ओपनिंग बैलेंस दिया है पार्टनर का, वो आपको यूज कब होगा, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो जो भी बैलेंस शीट में दिया गया है कैपिटल बैलेंस पार्टनर का, वी विल गोइंग टू यूज इट टू फाइंड आउट whether for the settlement of the accounts। ठीक है, तो that amount you will going to put over here। तो कितना दिया था बैलेंस शीट में, इन द बैलेंस शीट लीला का इट इज 2,27,160। So that I will going to mention over here 2,27,160। Is it clear? Now we will going to see the debit। अभी कहाँ कहाँ लीला डेबिट हुई है, that we will going to see। ठीक है, तो डेबिट अब इन द फर्स्ट एंट्री अगेन नहीं है, चारों एंट्रीज में उनका नाम नहीं है। यहाँ पे लीला का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और वो कितना हुआ है, इट इज 1,23,600। ठीक है, नेक्स्ट नाउ ओवर हियर इफ यू विल सी लीला एक और जगह डेबिट हुई है। ठीक है, इफ यू विल सी ओवर हियर यहाँ पे रियलाइजेशन में, और कितना डेबिट हुई है, सिर्फ लीला का शेयर देखना है आपको 25,000। सो दो जगह पे लीला का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, उन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो टोटल कितना आया 1,48,600। दोनों का टोटल कितना आया 1,48,600। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल डेबिट, इट इज 1,48,600। ठीक है, तो वंस यू विल गोइंग टू गेट दिस, तो आपको क्या करना है, अगेन वैसे ही डेबिट सॉरी क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। ठीक है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद कितना आंसर मिल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट यू विल गोइंग टू गेट। I hope everyone is calculating। दिस इज द लीला बट आई एम टेलिंग यू, बचा हुआ जो भी है वो आप खुद सॉल्व करोगे दोनों पार्टनर्स का। आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। सो वन आंसर आई हैव गॉट दैट इज 78,460।
whether it will be 460 or 560. Zero zero cut. This will be 6. 11 में से 6 गया तो कितना बचता है? 5. This will be 16. 16 में से 8 गया तो it will be 8. This will be 11. 11 में से 4 गया तो 7. It will be 78. 560. Okay. So this is the amount which will be payable to Leela. Okay, because the credit is more and debit is less. Okay, correct. Now the next one, अब ऐसे ही आपको बचे पार्टनर्स का भी करना है, ठीक है? तो I want everyone now to solve it by yourself and let me know directly. Let me know the amount which will be paid by the firm to the Mundas और Munda पे करेगी firm को. तो ऐसे ही करना है आपको, जहाँ पे मुंदा का क्रेडिट है, जहाँ पे मुंदास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसका टोटल फाइंड आउट करोगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे आप, ठीक है? तो जब भी आप क्रेडिट का टोटल फाइंड आउट करोगे, तो जहाँ-जहाँ मुंदा क्रेडिट हुई है प्लस ओपनिंग बैलेंस जो उसका दिया है, ठीक है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, वो आपको लेना है, ये दोनों को आपको लेना है और तब आप क्रेडिट का टोटल फाइंड आउट मिलेगा आपको। So we will see in the फर्स्ट 4 एंट्रीज यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं, व्हेयरएज़ यहाँ पे भी लीला का नाम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हिच मीन्स इन द फर्स्ट 5 एंट्रीज जहाँ पे पार्टनर का नाम है ही नहीं, मुंदा का नाम नहीं है, ठीक है? तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जाएँगे टू दी नेक्स्ट 5 एंट्रीज, इन दैट वी विल गोइंग टू सी मुंदा कहाँ पे क्रेडिट हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे इन द फर्स्ट एंट्री 6th एंट्री मुंदा इज़ देयर बट डेबिट हुई है, क्रेडिट नहीं हुई है। 7th एंट्री में मुंदा का नाम नहीं है। 8th एंट्री में मुंदा का नाम है और वो क्रेडिट भी हुई है, ठीक है? और 9th एंट्री में मुंदा का नाम है पर वो डेबिट हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे व्हाट यू विल गोइंग टू डू, तो क्रेडिट में इफ यू विल सी ओनली वन एंट्री इज़ देयर व्हिच इज़ दिस वन, सो इट्स 50,400। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट में दिया है, ठीक है? कितना दिया है मुंदा का, इट्स 1,44,000। तो इसमें आप ऐड करोगे 1,44,000, तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा? What will be the total? 1,44,000 plus 50,400. Correct? It's 1,94,400. Correct, Aditya? So 1,94,400. ठीक है, तो दिस इज द क्रेडिट टोटल दैट वी हैव गॉट। अब हम डेबिट का टोटल करेंगे, तो डेबिट कहाँ पे हुआ है? मुंदा सिर्फ एक ही जगह पे डेबिट हुई है, ठीक है? सॉरी, 2 जगह पे डेबिट हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कितना है? इट्स 1,21,200 और यहाँ पे कितना है? इट्स 16,667। तो इसका टोटल कितना होगा? 768,731। So it will be 1,37,867, ठीक है? So we have got both the totals, ठीक है? We have got the credit का total which is 1,94,400। हमने डेबिट का टोटल भी किया, तो as we can see क्रेडिट साइड वापस ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, which means the firm has to pay to the मुंदा ऑल्सो, ठीक है? तो जो भी डिफरेंस है इट विल बी हाउ मच, जो भी डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट करोगे। What is the difference? It will be 56,333. This is the amount after deducting the credit minus debit of मुंदास। वैसे ही आप कुंदा का भी करोगे, ठीक है? सेम उसका भी करोगे एंड देन यू विल गोइंग टू गेट योर अमाउंट। अगेन आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे। If the answer is coming positive, which means the firm has to pay to the partner
I directly got the answer now from your side कि how much Kunda's capital will be. It's already calculated over here. ठीक है, तो कितना पे करेंगे? It will be 44,227. So this is the amount which will be paid to Kundas, ठीक है, by deducting the credit minus debit. ठीक है, so these are the three amounts. If you will see, तो तीनों भी पे करना है